جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس بھی کام کا آغاز، جس بھی کار خیر کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے لے لیا جائے تو پھر کام اپنی منزل تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں جناب جاوید صاحب کو درخواست کروں گا کہ سر تلاوت قرآن پاک. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. معزز مہمان گرامی، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رانا صاحب کی بہت اچھی کاوش ہے ہمیں ساتھ ملانے کی. وائز آف مرتضیٰ کھرل کے لیے ہم تہہ دل سے اور اپنی بھرپور کوشش سے انشاءاللہ دن بھر رات کوشش کریں گے اس کو اتنی منزلیں آسان ہوں ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی کامیابی دے. جتنے بھی لوگ، جتنے بھی پرسن یہاں پہ موجود ہیں وہ بہت دن رات محنت کر رہے ہیں اور رانا صاحب نے ہمیں جو دعوت دی ہے ہم دل سے ان کے مشکور ہیں. رانا عقیل ضمیر وائس چیئرمین، ان کے بہت شکر گزار. کوآرڈینیٹر لاہور غلام رسول، اور سب سے بڑھ کے سب کے نام اگر میں کسی کا نہیں لے پا رہا تو میں معذرت خواہ ہوں. تو ہمارا جو وائس آف مرتضیٰ کھرل چینل ہے، ہم نے سر اس کو سٹارٹ کیا ہے ایک سیزن بنیادوں پر. کوشش یہی رہے گی کہ اس کو جو ہے کوالٹی کے ساتھ لے کر چلا جائے، نہ کہ کوانٹٹی کے ساتھ. اور پنجاب میڈیا سے بھی ہماری یہی درخواست رہے گی کہ وہ بھی ہمارا بیک اپ میں ہمیشہ ساتھ دیں، پروڈکشن کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے، اور ہر طرح کی جو بھی اس میں ہمیں ضرورت پڑے. ہمیں امید ہے کہ پنجاب میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. تو میں جو ہے دعوت خطاب، جاوید بھائی نے تو اپنے جذبات کا اظہار کر لیا تلاوت کے ساتھ ساتھ. دعوت خطاب جو ہے میں دوں گا. میں بہت بڑا فین ہوں ان کا اور میں جو ان کو بولتے سنتا ہوں تو بڑے غور سے سنتا ہوں. ویسے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی کی بات سننے کا، پر میں ان کو بولتے سنتا ہوں تو بہت غور سے سنتا ہوں. بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے مخاطب ہیں، بڑے اچھی طریقے سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا ہمارے بھائی کامران کو، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے، وہ آگے اپنے جذبات کا اظہار کریں. پلیز آپ کی تعلیم. وائس آف مرتضیٰ کھرل اور پنجاب ایسوسی ایشن جو ہماری ہے، میں نے مرتضیٰ صاحب کے لیے ایک لفظ کہا تھا کہ اگر زمینی سفر پر کوئی آسمان ہے تو وہ مرتضیٰ صاحب ہیں. لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان کے ساتھ جو ہے نا چاند سورج بھی مل گئے ہیں. تو میری تو یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس آسمان کی بلندیوں پر اور نیک نیتی سے اس عمل کو جاری رکھیں اور اپنے فرائض جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلے گی، سنسیئر ہو کے، لائل ہو کے، اور بہت اچھا کام کرے گی. انشاءاللہ جو ہمیں عہدے دیے گئے ہم اس کا مان بھی رکھیں گے اور ساتھ میں ایمانداری سے کام بھی کریں گے. بہت شکریہ. پروفیشنل لوگ جو ہے مرتضیٰ کھرل صاحب لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ. تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، میں ٹیلی ویژن سے جانتا ہوں اپنے بھائی کو، 15 سال ہو گئے یہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور جو ہے میں اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بہت سارے پروڈیوسر جو بڑے بڑے نام ہیں جس کو جانتے ہیں. اور میں علی عمران صاحب سے مخاطب ہوں. علی عمران جو ہے یہ بڑا اچھا آدمی، بہت لوگوں کو کوآرڈینیٹ کر چکا ہے. میں چاہوں گا مختصر الفاظ میں میرا بھائی جو ہے نا اپنے جذبات بیان کرے. جی السلام علیکم تمام دوستوں کو. نوید پاکستان اور وائس آف مرتضیٰ کھرل کی طرف سے آپ کا اپنا بھائی دل کی آواز عمران کا سلام ہوئے. تو میرا خیال ہے پنجابی ذرا مزہ آئے. رانا صاحب اجازت ہے؟ جوید صاحب اجازت ہے؟ بٹ صاحب اوکے. لو جی گل ہے جی محبت پیار دی اسی کیتی ہے وائس آف مرتضیٰ کھرل جڑے چینل تو تے ساڈے نال ونڈ پائی ہے، پیار دی سانجھ پائی ہے پنجاب میڈیا نے، نوید پاکستان نے. سارے ممبران میں ہتھاں گرے نوں ویلکم کردا جی. اور رانا خلیل ضمیر صاحب تے اچھا جی میں لانا بنوانا اے بھائی ریکارڈ رکھنا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چلنا لاہور لائف بھی ساڈا ہے، نوید پاکستان بھی ساڈا ہے، وائس آف مرتضیٰ تے ہے ہی ساڈا. سوچاں ٹی وی جڑا چینل ہے اج میں بھی اعلان کرنا اسے موقع کے اتنے، وہ بھی ساڈا ہے. ٹھیک ہے. جنوں جڑے عہدے دیتے ہیں وائس آف مرتضیٰ کھرل دے شعبے دے وچ، کوئی اینکر پرسن ہے تو اینکر دا کام کرے،
ਟੰਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਂਟਗੋਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ, ਸਾਕਬ ਅਲ ਨਿਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਵਾਲ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਵੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਮਰਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਾਬ ਸਾਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨਕ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘੂਰ ਰਿਹਾ, ਵਸੀਮ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, उस दिन ईद मुबारक, उसी जिस दिन फिल्म लगा। रब रखा जी। ये जो ख़वातीन है सर, ये एक भरोसे के साथ और एक यकीन के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं। आजकल जो मीडिया के हालात हैं, शोबिज़ के हालात हैं, आप सबको पता है, पर ये वॉइस ऑफ मुर्तज़ा खल का, हमारे CEO मुर्तज़ा खल साहब का भरोसा है, उनकी शख्सियत है कि ख़वातीन इतनी तादाद में हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं और बड़े यकीन से अपने घर से आती हैं और माशाल्लाह एक लंबी ड्यूटी देकर जाती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा ख़वातीन के लिए तालियां हो जाएं। क्या बात। हम लोग अभी मीडिया में प्रोफेशनली आगाज़ ले रहे हैं और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ हमारा इल्हाक़ हो गया, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है हमारे लिए। हमारे पास जो कैमरामैन आए हैं वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आए हैं। साजिद भाई हैं माशाल्लाह अपने काम में एक्सपर्ट, कामरान भाई हैं अपने काम में एक्सपर्ट, अली दराज साहब बैठे हैं, बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशकिस्मती है हमारे चैनल की कि इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अली भाई हैं जियो न्यूज़ से माशाल्लाह। तो ये सब लोग इधर से हमारे साथ सोबिया हैं, एक हाउसवाइफ होने के बावजूद एक लंबा टाइम हमें सर हमारे ऑफिस के लिए देती हैं और अकाउंटेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। अब ये जो है क्राइम रिपोर्टर के तौर पर ये हमारे साथ जुड़ी हैं। उसके अलावा आरफीन जी हैं शोबिज़ रिपोर्टर के लिए। तो बहुत इंशाल्लाह जो आगे काम आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं जो आगे दावत दूंगा, मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर अपने जो तजर्बा है उससे हमें मुस्तफ़ीद करें और हमें बताएं कि इंडस्ट्री के अंदर मज़ीद आगे चल के हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं दावत दूंगा अली दराज साहब को, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of the Lord which creates man with the clouded bird, the most beneficent and the merciful. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महबूब भाई का कि उन्होंने मुझे चंद लफ्ज़ बोलने की इजाज़त दी। मेरा ज़्यादातर काम कराची में रहा है और मैं फ़र्स्ट टाइम इतने ज़्यादा टाइम के लिए लाहौर में काम कर रहा हूँ और उसको क्रेडिट स्पेशली क्योंकि मुझे पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं मिली, तो उसका क्रेडिट स्पेशली मैं देता हूँ मुर्तज़ा खरल साहब को कि उनकी पर्सनैलिटी और उनकी जो प्रोडक्टिव उनकी जो काविश है उसके लिए मैं यहाँ पे भट्टी साहब और मुर्तज़ा खरल साहब के वसातत से मैं यहाँ पे रह गया और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जब मैं इसकी यूनिफिकेशन को देखता हूँ पंजाब मीडिया और वॉइस ऑफ MK की, तो ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे है कि एक पूरी टीम जो कि बहुत प्रोफेशनल टीम है वॉइस ऑफ MK की, और एक बहुत ही पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन पंजाब मीडिया और इतने ब्रिलियंट लोग, जब मैं मिलता हूँ सर खलील साहब को जब मैं मिला हूँ और इतनी प्रोडक्टिव और उनके इतना एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि ये जब यूनिफिकेशन आगे प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और अपने नई नई प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करेगी तो ये एक बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट देगी। मेरी ये दुआ है कि ये जो यूनिफिकेशन है वो कायम रहे और हम बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएं और बहुत अच्छा काम करें। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ख़वातीन की नुमाइंदगी जहाँ पर ना हो वहाँ पर महफिल अधूरी रहती है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा जो हमारी बहुत चहेती हैं, हमारे ऑफ़िस की जान है, हमारे ऑफ़िस का मान है, हमारे ऑफ़िस की इज़्ज़त है,
اور ایک ڈگنیٹی مینٹین کر کے اس نے مثال قائم کی ہے. میں بہت بڑا قائل ہوں اس کی ذات کا. تو میں اس کو بلاؤں گا سب سے پہلے. کرائم رپورٹر کے طور پر پنجاب میڈیا سے جڑی ہیں صوبیہ, ان کو بلاؤں گا کہ وہ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. تالیوں میں. السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. آج ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا, بہت خوشی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ مل کے کام کریں گے. ان کو بھی میں بہت کچھ یہاں سے سیکھنے آئی ہوں اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھوں گی اور سیکھ بھی لی ہے. پہلے مجھے اس چیز کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا. میں اس فیلڈ میں آئی فرسٹ ٹائم ہوں, لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ بہت کچھ ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں سیکھا ہی نہیں ہے. میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں ادھر آئی ہوں. رانا صاحب نے ہمیں بلایا ہے, مرزا خلر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے اتنا عہدہ دیا ہے. ان کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور بھی جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں گاہے بگاہے لیتا رہوں گا نام. سب لوگوں کا ویسے شکریہ دل کی اتھا گہرائیوں سے. سر کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے دوستوں سے ضرور کرنا چاہوں گا. جو نئے دوست ہمارے جو ممبر بنے ہیں, جو رپورٹر بنے ہیں وائس آف مرتضیٰ کھرل کے توسط سے, چاہے وہ ہماری آرگنائزیشن سے نہیں بھی ہیں, پنجاب میڈیا سے ہیں, نئے لوگ آئے ہیں رپورٹر. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, کیسے نیوز بنانی ہے, کیسے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہر دوست کے لیے کھلا ہے. ہر دوست کے لیے. اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرنیز ہیں, کسی بھی یونیورسٹی سے. یونیورسٹیز میں نہیں بتایا جاتا, بکس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں بکس کے اندر 10% بھی نہیں ہے. علی دراز میں میرا بھائی جانتا ہوگا, بکس کے اندر 10% بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر کوئی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کے توسط سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے پلیٹ فارم اس کے لیے کھلے ہیں. ہم آپ کو آن کیمرہ کام کروائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. اور جو لوگ نئے نئے رپورٹر بنے ہیں, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کامران بھائی جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ساجد جیسا بندہ آپ کے ساتھ کیمرہ مین موجود ہے, کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. باقی سب لوگ سارے پروفیشنل ہیں, تو آپ کو کسی چیز سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا, ایک ٹائم بہت جلدی آئے گا, بہت اچھی رپورٹنگ کر کے آپ دنیا کے سامنے ریپرزینٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, میں جو ہے آگے دعوت خطاب دوں گا. میرے جو ہے بڑے ہی اچھے دوست ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کو اگر تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے دل کی بات اگر نہ سنی جائے اور ان کے جذبات نہ سنے جائیں تو ان کے عہدے کی بھی ہم لوگ مان نہیں رکھ پائیں گے. بہت مختصر بولے ہیں. میں چاہوں گا جاوید بھائی پھر آئیں اور ہمارے ادارے کے لیے اپنا, یہ بہت اہم عہدہ ہے ان کے پاس, کیونکہ یہ ہمیں کھرل صاحب اگر اویلیبل نہیں ہے تو یہ بندہ ہمیں 24 گھنٹے اویلیبل ہے. میں جب فون کرتا ہوں سب سے پہلے فون یہی اٹھاتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے. دوبارہ سے دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ محبوب عالم صاحب. آپ کی مہربانی, آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, اور ہمارے سی او صاحب رائے مرتضیٰ کھرل صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, مجھ پہ اور علی عمران پہ. اور غلام رسول بٹی صاحب کی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں جو ہمیں اتنی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیے دن بھر رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جڑے رہیں, کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس میں ہم لوگ تھوڑا ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں, اور یہ ہمیں جوڑ کے رکھتے ہیں. رائے مرتضیٰ کھرل صاحب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کام کریں اور آگے بڑھیں, تاکہ ہمیں آنے والے وقت میں کوئی ایسی دقت, کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ ہو, اور ہم اپنی جتنی بھی ہم میں ایفرٹس کر رہے ہیں, اور رائے مرتضیٰ کھرل صاحب کے لیے, ان کے چینل کے لیے ہم دن پر رات کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور سب لوگ مل کے کام کریں گے. اور رانا خلیل صاحب کے لیے میں بہت مشکور ہوں, جنہوں نے ہمیں دعوت دی, ہمیں اتنی عزت دی, ہمارے پاس آئے, اور ہمارا انہوں نے بہت زیادہ مان رکھا. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ جاوید بھائی. آپ نے بات کی غلام رسول بھٹی صاحب کی. غلام رسول بھٹی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ میں اپنی لائف کے اندر بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ہر کڑوی بات کو بھی ہنس کے ٹال دینا. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے اپریشیٹ ہونی چاہیے کہ کڑوی بات بھی ان کے سامنے اگر ہو نا تو اس کو ہنس کے یہ ٹال دیتے ہیں. اور بڑا لوگوں میں صلح جو انسان ہے, بہت سی جگہوں پہ انہوں نے صلح کروائی لوگوں کی, تو میں ان کا بہت تھینک فل ہوں. سب سے پیچھے بیٹھے ہیں میں انور عزیز صاحب. انور عزیز صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں اور فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے. میں نے بہت سارے چینل پہ ان کا نام سنا ہے, اور ایک بہت سینئر اور سیزنڈ ڈائریکٹر ہیں فلم انڈسٹری کے, اور میں ان کو چاہوں گا آئیں سر
अपने जज्बात का इजहार करें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। शुक्रिया। तालियों में। बहुत शुक्रिया महबूब साहब, राना खलील साहब, मुर्तज़ा खल साहब, गुलाम रसूल भट्टी साहब और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं शोबिस की दुनिया से, जिनमें फ़िल्म, ड्रामा, टीवी 55 साल से मुंसलिक हूँ और बहुत काम किया। बहुत बड़ी फिल्में, बड़े बड़े जो हमारे लेजेंड अदाकार थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरा, हीरोइंस थी, सबके साथ मेरा साथ रहा। और एक मतलब लंबी मेरी इनिंग है जो 70 में मैं एंटर हुआ था स्टूडियो में और अल्हम्दुलिल्लाह इस लम्हे तक मैं काम कर रहा हूँ। ये अभी भी अगर खड़ा हूँ तो मैं अभी मुर्तज़ा खल साहब का जो चैनल है वॉइस ऑफ एम के, उन्हीं के तवस्सुत से यहाँ खड़ा हूँ। तो बहुत बड़े बड़े फिल्में, बहुत बड़े आउट ऑफ कंट्री, लंदन में, रशिया में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बैंकॉक, फिलिपाइन, इंडिया तक काम किया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप ऑफिस है यहाँ, एक चैनल खोल रहे हैं नई सोच, तो वो चाह रहे हैं कि आप आएँ और उनके लिए काम करें। तो शाह नूर में जो रास्ता अंदर जाता है स्टूडियो की तरफ, उसके कॉर्नर पे एक ऑफिस था। मुझे बताया गया सीढ़ियाँ चढ़ के। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ कुछ लोग जानने वाले और कुछ अजनबी लोग थे और कुछ ख़वातीन थीं। बड़ी ऑनर से मुझे बिठाया गया, उन्होंने बुलाया और तो उन्होंने बताया कि जी आप एज ए डायरेक्टर हमारे साथ काम करें हमारे इदारे के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो कुछ ही लम्हे बाद जो CEO थे मुर्तज़ा खल साहब जब एंटर हुए, सब ने उठ के इस्तकबाल किया, मैंने भी मिला और उन्हें बताया गया कि जी अनवर अजीज़ साहब। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से मुझे बैठे को कर, मैं बैठा। 10 मिनट की गुफ्तगू में जो मैंने मुर्तज़ा खल साहब की शख्सियत को परखा, मैं कसमन कहता हूँ, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ऐसे वो गुफ्तगू और ऐसे सबसे प्यार मोहब्बत कर रहे थे कि मैंने कहा यार यहाँ पे काम करना है मुझे। तो जब शुरू हुआ तो शिफ्ट किया गया ऑफिस इकबाल टाउन में और वहाँ पे काम शुरू हुआ। और अल्लाह पाक ने जो साथी शामिल किए वो इस तरह था कि जैसे कोई गुलाब का फूल था, कोई मोतिये का, कोई चमेली का, कोई, और वो सब फूल इकट्ठे हुए और इतना खूबसूरत गुलदस्ता बन गया कि जब भी कोई उस ऑफ़िस में आता है तो उसे एक अजीब सी खुशबू वहाँ से नज़र आती है, हुनरमंदों की और टेक्नीशियंस की, कि इतने अच्छे लोग हैं। इसी दौरान प्रीवियस नाइट राना खलील साहब आए, बहुत खुशी हुई उनसे मिलके और मुझे मालूम हुआ कि अब हम लोग इनके साथ मिलके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैथमेटिक का असूल है कि जब भी आप जमा करते हैं तो 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगा है कि 1 1 2 नहीं है, बल्कि ये 1 और 1 11 है। और 11 लोग जब मिल के करेंगे तो वो फिर उसका जो रिज़ल्ट होगा तो डेफिनेट, हर बंदे में जज्बा है, जुनून है। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं इस लम्हे भी 71 प्लस हूँ कि मुझ में शौक़ नहीं है कि मुझे शौक़ है मैं काम करूँ फिल्म, मुझ में जज्बा और जुनून है। और उसी जुनून के तहत मैं कोई 36 जगह काम कर रहा हूँ। कभी रात को कहीं जाता हूँ, दिन में कहीं जाता हूँ, कहीं से आता हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा यंगस्टर और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं लोग जो फ़िज़िकली भी फिट हैं वो। लेकिन अगर मैं इस वक्त अल्लाह के करम से या अल्लाह पाक मुझे, तो वो मेरे जज्बे और जुनून को वो बुलाते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि बाकी साथियों में भी ये जुनून और जज्बा मौजूद हो। अल्लाह पाक हमारे इदारे को दिन दूगनी, 4 चौगनी और 8 अठूगनी तरक्की अता करे। आमीन सुम आमीन। हमारे बीच एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके साथ मेरा जो ताल्लुक़ है तकरीबन 1 साल हो गया। हम लोग 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हम लोग एक इदारे में मिले थे और वो इदारा भी प्रोडक्शन हाउस था एक, और हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर।
एज हम लोग वर्कर ही कोलीग के साथ काम शुरू किया, पर हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त बने और प्रोफेशनली हम लोग साथ चले। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया, बल्कि प्रोजेक्ट में हाथ डाल लिया हमने, और हम लोग यहाँ से लाहौर से निकल पड़े बाहर, और 2.5 महीने तक हम लोग घरों में वापस नहीं आए। वो काम करते रहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जंगलों में और दरियाओं में, पहाड़ों में, बहुत सारी चोटें खाई। और ये जो ख़ातून है, ये मैं इनको समझता हूँ कि इनसे बहादुर मैंने अभी तक माँ बाप के अलावा कह रहा हूँ कि एक ऐसी बहादुर औरत है जिसने शोहर की वफ़ात के बाद सिंगल हैंडेडली अपनी 4 बेटियों को प्रोफेशनल बनाया। अभी रिसेंटली इनकी जो बड़ी बेटी है वो MBBS डॉक्टर बनी है। मेरा ख्याल ये बात जो है मेरी नज़र में बहुत तालियों के लायक है, क्योंकि माँ बाप जो है वो बहुत सारे माँ बाप हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं पाल पोस के, पर बच्चों को काबिल बनाने वाले जो माँ बाप हैं ना, वो दुनिया में कम होते हैं। तो ये उनमें से है। 2 बेटियाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर फ़ीसें भी लाखों में हैं, वहाँ पर पढ़ा के माशाल्लाह प्रोफेशनल बनाया। तो हमारी शोबिज़ रिपोर्टर आरफीन आयशा को मैं दावत दूंगा, वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। जी आरफीन आयशा, आपकी तारीफ। मैं सबसे पहले सर महबूब को भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं इस प्लेटफार्म में आज खड़ी हूँ, ये सब वॉइस ऑफ MK मुर्तज़ा साहब की वजह से हूँ, और हम सब लोग इसके मेंबर बने हैं। ये पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन, मैं ये राना साहब का और वसीम नाज साहब का भी बहुत थैंक्स अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हम इस प्लेटफार्म पे खड़े हैं। तो इंशाल्लाह सहाफ़त की दुनिया में हम लोग मेहनत करेंगे। पहले भी मैं रिपोर्टिंग वगैरह करती रही हूँ, 2-3 साल पहले भी करती रही हूँ, लेकिन अब मुझे दोबारा से इस पाकिस्तान मीडिया में, तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सर मुर्तज़ा साहब के मैं एक शेर अर्ज़ करती हूँ। रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में भी छाँव जैसा है। थैंक यू। मंडी बहाउद्दीन से आई हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं। इनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, 2 बार हुई है। एज अ राइटर बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा इनका जो है आर्टिस्टिक सेंस है, बात करने का अंदाज़ है, लिखने का अंदाज़ है। मैं चाहूँगा वो अपने ख़यालात का ज़रूर इजहार करें। तो मैं दावत दूंगा मैडम जाहिदा जी को। प्लीज़ मैडम आइएगा स्टेज पे। जी तालियों में आपकी। अस्सलाम वालेकुम। सब जितने मेरे अजीज़ बहन भाई, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस अदारे तक और उस अदारे तक जाने तक हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़े बड़े वसीले बनाए हैं। किसी वसीले से ही हर कोई अपने मकाम पे पहुँचता है। कोई कहे ना कि मैं यकदम ये काम कर लूँ, या किसी काम का कोई उस्ताद नहीं है, किसी काम को कोई एकेडमी नहीं है, या कुछ स्कूल नहीं है, वो बात गलत है। हम जिस अदारे में आए हैं, जिसने का नाम इतना बड़ा, मुर्तज़ा खरल साहब जी, थैंक यू सर। मैडम आप मंडी बहाउद्दीन से माशाल्लाह इतनी दूर से और जिनके अदारे से हम लोग आए हैं, इंशाल्लाह हमें जाकर हम ज़रूर तरक्की करेंगे। और जिधर भी हमें साथ लेके मुर्तज़ा साहब, जवेद साहब, अली इमरान साहब, महबूब साहब, हमारे सबसे भट्टी साहब, जितने भी किसी के नाम नहीं ले सके, वो महबूब साहब की बात आ जाती है कि सारों का नाम लेने से बहुत टाइम लगता है। हमारी सोबिया सिस्टर, सब हमारी एक मैनेजर, और इनको सबको मैं यही कहती हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह जब स्ट्रगल करेंगे और हम अपने मुकाम पे पहुँच जाएंगे। और काम यही होता है, स्ट्रगल करने से मज़ा उसी बात का है, स्ट्रगल करने से। अगर स्ट्रगल रंग लाती है तो इंसान हमेशा हर काम पे कामयाब होता है, किसी लम्हे भी वो नाकाम नहीं हो सकता। और उसके साथ मुर्तज़ा खलर साहब, राना साहब, जितने भी हैं हमारे सीनियर, इस जैसे सीनियर हमें मिले तो इंशाल्लाह हम ज़रूर तरक्की करेंगे और हमारे अदारे तरक्की करेंगे। हम कभी नाकाम नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पंजाब मीडिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनके भी माशाल्लाह सीनियर मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं और वकला की नुमाइंदगी भी मौजूद है। मेरी मुराद जो है वो राना कौसर लहरी साहब से हैं, जो एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट से। उनको मैं दावत दूंगा, वो ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं भी पंजाबी च गल करांगा भाई तरह।
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਫਰੇ ਹੈ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ 100 ਦਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कोई महफिल, कोई आवाज़, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा, किसी को गौर से सुनने से या किसी की बात सुनने से कोई ऐसा सबक मिल जाता है। हज़रत अली का कौल है ना, किसके साथ चलो तो बहुत दूर तक चलो। दो चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको एक अच्छा दोस्त मिलेगा तो जो आपको एक अच्छा रिजल्ट नतीजा मिलेगा। लिहाजा मेहनत, ईमानदारी से, असूल पसंदी से, ये हमारा शेव होना चाहिए। जो आपकी फील्ड है, सहाफ़त की जो फील्ड है, ये तो सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, लफ्ज़ों की तरतीब है जो आप लोगों ने देनी है। लफ्ज़ तो हम भी बोलते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए। आपकी बात से मुर्तज़ा साहब, एक जज्बा होना चाहिए, आप लोगों में एक जोश होना चाहिए, दिलेरी होनी चाहिए। कौमें और लोग अदारे वही जीतते हैं जो दलेर होते हैं, जो अपनी बात को बात समझते हैं और उस बात को पहुंचाते हैं आगे। लेकिन जिस ये वाइस साहब, मुर्तज़ा साहब, ये वाइस पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। क्या बात है। और ये यकीन करें, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हौसला, हिम्मत, जज्बा, डिटर्मिनेशन, आपका शौक। अगर बंदा अपने प्रोफेशन को शौक में ले लेना तो दिन रात काम करे, मजबूरी से ना ले, तनहा ना देखे, इंसाफ करे अपने शोबे से भी और अपने आप से भी और उस अदारे से भी। जैसे नज़ीर साहब ने बताया कि इतना एक्सपीरियंस लोग आपके पास मौजूद हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग आपसे इस वक्त मौजूद हैं आपके दायरे में। तो ये आवाज़ जो है अभी तो मेरा ख्याल इब्तिदा लग रही है मुर्तज़ा साहब, लेकिन ये पंजाब से होती हुई एशिया में जाएगी, एशिया में सेंट्रल एशिया में जाएगी, वो यूरोप में जाएगी, फिर अमेरिका में जाएगी, फिर तमाम दुनिया में फैलेगी। ये फैल सकती है, लेकिन जहाँ से आपका जोश और हिम्मत वो मान नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी शोबा है, वो वकालत है, सहाफ़त है, मेडिकल है, एजुकेशन है, जो लोग लग जाते हैं वो जीत जाते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी शुरू की वकालत, कुछ भी नहीं था, गाड़ी अपना वैगन पे 5 नंबर वैगन पे आते जाते लगे रहे, फिर दिल से, हिम्मत से। तो एक वक्त आया, अल्लाह ने लाहौर बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ इज़्ज़त दी, मुझे प्रेसिडेंट बनाया। तो ये सिर्फ एक डिटर्मिनेशन थी, हौसला था, खलूस था, दिल था, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। तो आज भी मैं 47 का हूँ, तो लगता है कभी कभी वही हूँ जो आज से 20 साल पहले था। तो आप सब दोस्त बड़े एक्सपीरियंस हैं, बड़ा नॉलेज है, बड़ी अच्छी एजुकेशन सब दोस्तों की। लेकिन मुर्तज़ा साहब की मेरी दिल में बात बैठ गई है कि डिटर्मिनेशन कम है, हौसला कम है, वो आप में होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, फिर आप जीतते हैं। आप नहीं हार सकते, कभी जिंदगी का कोई नहीं हार सकता। क्या बात है। यकीन करें, कोई नहीं हार सकता। अगर आप लगे रहें बिला झिझक, ना थकना, ना अकना, ना झटकना, 3 चीज़ें हैं। झिझकना नहीं है, थकना नहीं है और अकना नहीं है। फिर दौलत, इज्जत, रिस्पेक्ट वो मालिक सब कुछ दे देते हैं। हमारे आप सबके सामने हुआ सारा कुछ। लोग ज़ीरो से हीरो बनते नजर आए हैं। आप लोगों ने देखा, किसी भी शो में देख लें आप लोग। तो मैं स्पेशली ख़वातीन
आप लोगों को हमें बहुत इज्जत देनी चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में 75,000 या कितने लाख खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद ले रही हैं, तो वहीं अपने हम जाते हैं बांग्लादेश में तो वहाँ 70-80 हज़ार खवातीन वर्किंग कर रही हैं, वो इज्जत से अपना रोज़गार कमा रही हैं। तो मुझे ये खुशी हुई है कि खवातीन आपके साथ हैं, वो निकली हैं इज्जत से रोज़गार कमाने के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मेरी बात लंबी हो गई है, तो मैं जहाँ तक हूँ, मेरी वकालत कोई कानूनी आइनी किसी तरह से कोई मसला है किसी गरीब का है तो मैं इस दायरे के लिए हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारे अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त बड़े अच्छे मीडिया से जियो न्यूज़ से, जंग न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, और आपकी भरपूर तालियों में अली साहब आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो राना साहब और खल साहब को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक कि इन्होंने एक गढ़ जोड़ कर दिया, क्योंकि ये एक पावर बन गई। मीडिया और इंडस्ट्री ये एक दूसरे के साथ अगर चल पड़े तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई रोक सकता है। मीडिया जो है उसने ही हमेशा इंडस्ट्री के लोगों को प्रमोट किया। हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन हमें को दिखाने वाला कौन होता है? मीडिया वाले। तो इसके अगर मैं देखूं तो ये दोनों का एक गठजोड़ जो है ना, ये एक बहुत बड़ी पावर है, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही अगर रहे हम लोग तो ये आने वाले वक्त में हम एक नज़र आएंगे, किसी जगह एक मकाम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, सब दोस्तों ने जितना भी बोला बड़ा अच्छा बोला। जो आपके अंदर की जो आवाज़ थी वो आपने की, हमें सुन के बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह करे हम ऐसे ही रहें, आप हमारे लिए या हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। बेसिकली होता ये है कि एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट होते हैं तो एक ही टीचर होता है, एक ही उस्ताद होता है। तो जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है तो 40-50 जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उनमें से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई इंसान बनता है, और 35 लोग जो होते हैं वो रोड छाप बनते हैं। ठीक है जी। चूँकि वो उनकी तरक्की का, उनकी कामयाबी का राज ये होता है कि उन्होंने उस्ताद के ध्यान में ध्यान दिया होता है। जैसे वो कर रहे होते हैं वो उसको पिक करते हैं। जो उस्ताद को पिक नहीं करते वो मेरी तरह रोड छाप बन जाते हैं। तो आज यहाँ पे आए हैं, हमें राना साहब ने बुलाया है, वॉइस ऑफ मुर्तज़ा खल साहब के पूरी टीम हाज़िर है, हमारे साथ मसूफ़ा भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, पूरी टीम हम साथ लेके आए हैं। तो ये इनका प्यार है, इनकी मोहब्बतें हैं कि हमें इन्होंने यहाँ पे मदऊ किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी पूरी टीम, बल्कि मुर्तज़ा साहब और मैं बज़ाते ख़ुद नाचीज़ राना साहब के शाना बशाना कंधा मिला के सर इनके साथ चलेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ इंशाल्लाह। इनकी टीम, बल्कि ये इनकी टीम है, हमारी टीम नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि क्या हम कभी तन्हा बैठकर, अपने अंदर जितने लोग हैं उनके अंदर भी इंसान होते हैं, कभी तन्हाई में बैठकर हम उनसे कभी बात करते हैं? क्या उनसे कभी छेड़ा है हमें, उससे बातें की हैं? क्या हमने अपना हक अदा किया है? क्या किसी के लिए हम कुछ कर पाए हैं? ये नहीं दुनिया में आए और अपना काम किया और दुनिया से चले गए। ज़िंदगी तो ये है कि किसी के काम आए। आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, उसके मुताबिक अगर आप, मेरे पास जब मैंने ऑफिस बनाया, मैं कल भी बात की तो आज एक और बात शेयर करता जाऊँ। तो एक लेडीज़ मेरे पास आई, एक ख़ातून मेरे पास आई, उसने कहा ये एक बच्चा है, बच्चा मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कहा ये काफ़ी दफ्तरों में, काफ़ी जगहों पे काफ़ी मामलात इसके साथ हुए, आज तक किसी ने गले नहीं लगाया। तो चूँकि ये
नेकी और ये मामला अल्लाह ही करवाता है, इंसान की कोशिश होती है, नीयत होती है। तो मैंने उसको अपने गले से लगाया, तो उस बच्चे ने क्या कहा कि सर मुझे एक या नमाज और तस्बीह चाहिए। तो वो मैंने उसको दे दी। 3-4 दिन रोज़ पढ़ने के बाद उसने कहा, सर मेरी दिल से आवाज़ है कि ये जो शम्मा आपने रोशन की है ये एक बहुत बड़ा शजर बनेगा और इसमें कोई शक नहीं। मैं देख रहा हूँ राना साहब की सूरत में, मुर्तज़ा साहब की सूरत में, हमारे अनवर अजीज़ साहब हैं, ये हमारे लेजेंड लोग बैठे हैं, कामरान साहब बैठे हैं, महबूब साहब बैठे हैं, जुवेद बैठे हैं, और इसी तरह ये हमारी आरफीन हैं, अपना सोबिया मैडम हैं, मलीहा हैं, यानी कि जितने हमारे लेजेंड लोग बैठे हुए यहाँ पे। तो ये आज मुझे नज़र आ रहा है, आज अल्लाह की तरफ से ये सारे मामलात हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा। अगर राना साहब के साथ हम हैं और हमारे साथ ये हैं, तो ये नहीं होना चाहिए नीयत, और नीयत बड़ी काउंटेबल है। ये होना चाहिए कि कोई बंदा ऐसे थोड़े दिनों के लिए दावे करता है फिर ख़त्म कर देता है, लेकिन वो रास्ते में जब चल रहा होता है तो फिर ये होता है कि किसी बंदे ने कंधे पे हाथ रखा और पूछा, वो कभी अटकेलियाँ करता रहा, कभी भटकता रहा, कभी थोड़ा सा चले फिर रुक जाए, तो पीछे वाले बंदे ने कंधे पे हाथ रखा तो उसने पूछा कि तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे घर क्यों नहीं जाते। तो सर आप दुआ करें, आपकी नीयत हमारे साथ है, आपकी मेहनत हमारे साथ है। अल्लाह मुर्तज़ा साहब को ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता करे, इनका साया हम सब पे, राना साहब का साथ हमारे साथ रहे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि वो हम बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद ही मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। ये ऑफ़िस हमारा नहीं है, ये ऑफ़िस इन्हीं का ही है। तो सबसे पहले हमारे सरपरस्त आला मियाँ सईद खोखर साहब का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ये प्लेस दी, ये मोहब्बत दी। गुलाम रसूल साहब, अकबर भट्टी साहब, चौधरी वकास साहब, राना तोकीर साहब, अकील साहब, संधू साहब, और मेरे गुजरांवाला से आए दोस्त और मेरे बड़े भाई राना कौसर सलैद साहब, जो मार्टन बार के प्रेसिडेंट भी हैं और पंजाब बार के इलेक्शन को कंडक्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं, अभी इनका मूड तो नहीं बन रहा पंजाब बार के अंदर। सलैद साहब का कह रहे हैं कि अभी किसी और दोस्तों का टाइम है, उनका बनता, मेरा नहीं बनता, मेरी बारी नहीं है मेरे पैनल के। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मौका मिल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने अपने जिस दौर की बारी बनती उसको कहा कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो मैं बेहद मशकूर हूँ सलैद साहब का कि जिन्होंने अपनी कीमती वक़्त दिया। और मेरे भाई जो कहते हैं कि महफिल का कोई ना कोई लड़ा होता है, तो उनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा खर्ज। तो कोई शक नहीं है इसके अंदर, उनकी शख्सियत, इनके साथ जिस तरह लोग प्यार करते हैं, जिस तरह हम प्यार करते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जिस तरह अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अली इमरान साहब, अली साहब, जुवेद साहब, कामरान साहब, साजिद साहब, महबूब साहब, अनवर अजीज़ साहब, तमाम दोस्त जिनके मैं नाम नहीं ले सका, मैं बहुत मशकूर हूँ इनका। ये हमारे लिए एहसास की बात है कि मेज़बानी भी खल साहब ने महबूब साहब के ज़िम्मे लगाई और मेहमान नवाजी भी। मैं बेहद मशकूर हूँ पूरी टीम का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं दो बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, कि पंजाब मीडिया एसोसिएशन ने 2007 में इसका आगाज़ किया, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जो पहले दिन से कर्नल वजाहत साहब काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आज तक हमारे साथ हैं। और यकीन और बैठे सर, मैं कहूँगा, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता सर आपके ऑनर में नहीं, कि जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ है, तो मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आज लंबी बात नहीं करूँगा, दिल तो बड़ा कर रहा है कि लंबी बात करूँ, मौके का फ़ायदा उठाऊँ, लेकिन भट्टी साहब नहीं, आज चाहेंगे कि आज जो हमारे खसूसी मेहमान हैं, जो आज की महफिल के जो लाड़े हैं, आज हम उनको कहेंगे कि मैं दावत देता हूँ कि मुर्तज़ा खल साहब आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एक नारा आ जाए, राय मुर्तज़ा खल जिंदाबाद, राय मुर्तज़ा खल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 2200 मुर्तज़ा खल जिंदाबाद।
اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ جناب محترم قابل عزت رانا خلیل ضمیر صاحب، پنجاب میڈیا ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ، پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ، نوید پاکستان پریزیڈنٹ، اور بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی پیارے بھائی 2 لمحوں کے لیے پاس بیٹھے ہیں، اور ان کی خوشبو نے بتا دیا کہ وہ محبت کرنے والے ہیں، ایک اچھے لائر اور ایکس بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ کوثر صاحب، کوثر سلیری صاحب، آپ کا اور تمام دوستوں کا، اور تمام دوستوں نے سندھو صاحب کا نام لیا، بہت سے نام یہاں پر جو دوست آئے ہوئے ہیں مجھے نام پڑھ کے بولنے پڑیں گے، چلیں اب تو آپ سے تعارف ہو گیا، نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ سے ہوگا نا، جب مجھے مخاطب کرنے کا موقع ملے گا تو میں آپ کے نام ضرور یاد کر کے آپ کو پکاروں گا، چونکہ آپ سب دوست ہیں، آپ سب بھائی ہیں میرے۔ باقی میری تمام ٹیم، میرے چیئرمین غلام حسن بھٹی صاحب، محترم جوید صاحب، علی عمران صاحب، اسپیشلی محبوب صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی عزت دی، بڑا پیار دیا، بڑی محبتیں دی، اور انور عزیز صاحب آپ کا سر بہت شکریہ، آپ جیسے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، صوبی آپ کا شکریہ، میڈم صاحب آپ کا شکریہ، میڈم زیادہ امان ہماری رائٹر آپ کا شکریہ، ملیہ آپ کا شکریہ، سائدہ آپ کا شکریہ، اور عارفین آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، بات کرنے سے پہلے سر مجھے نا وہ، چونکہ آج نا صبح جب تلاوت کی بھائی نے اپنا جوید صاحب نے، تو وہ ایک نعت رہ گئی تھی نا، تو میں کہا چلے نعت تو ضروری ہے نا سر، تو وہ پھر میں نے کہا چلے ہم نعت کے شعر سے شروع کر دیتے ہیں کہ مٹی ابھی خندقی نہیں، مٹی ابھی خندقی نہیں، بادل ابھی برسا نہیں، مٹی ابھی خندقی نہیں، بادل ابھی برسا نہیں، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا ہے چرچا۔ آقا حبیبی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آقا تیرے اوصاف لکھوں، آقا تیرے اوصاف لکھوں، کہاں یہ مرتبہ میرا، آقا تیرے اوصاف لکھوں، کہاں یہ مرتبہ میرا، کہاں میں خاک بے مایا، کہاں تو یا رسول اللہ۔ آقا میں جو بھی لفظ لکھتا ہوں، میں جو بھی لفظ لکھتا ہوں، اس کی حدیں ہیں، اس کی حدیں ہیں، میں جو بھی لفظ چنتا ہوں، اس پہ ہاتھوں کے نشاں ہیں، آقا مجھے تو کوئی لفظ بھی تیرے قابل نہیں لگتا۔ بلندی آسمانوں کی جہاں پر ختم ہوتی ہے، وہاں پر ابتدا تیری، وہاں پر آغاز تیرا۔ وہ محبوب صاحب نے بڑی محبت سے نا ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان زندہ باد۔ جب سر آپ نے نعرہ لگایا نا پاکستان زندہ باد، تو میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلا گیا نا۔ وہ ایک کہانی سر مجھے اپنی ہی فیملی کی یاد آتی ہے۔ سب جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو ہم سر زمیندار ایک فیملی تھی، اور میرے جو تھے نا دادا، وہ وہاں پر ہندوستان میں، انڈیا میں تمبڑ بن ایک جگہ ہے، اس کے سر وہ ایک مسجد کے امام تھے۔ تو وہ گھر آئے ہیں تو میری دادی سے کہنے لگے کہ وہ ان کا نام تھا، دادی کا نام تھا نور بیگم نام تھا، کہ آپ ایسا کریں کہ وہ اعلان ہو گیا ہے کہ الگ پاکستان بننے جا رہا ہے، تو ہمیں نا یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو ان کا نام تھا امام دین تھا، کہ میاں صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے آپ کے شاگرد ہیں، یہ سارے پڑھتے ہیں، آپ کا ہمارا علاقہ ہے، ہماری یہاں زمینیں ہیں، ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں، ہمارے بہت سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں ہمیں جانا پڑے گا۔ اب سر وہ جو گاؤں میں خواتین ہوتی ہیں، وہ بڑا گھر تھا، چودھری وہاں کے تھے، وہ ساری سر چیزیں وہ ساری وہ اتار رہی ہیں، وہ جو چھتیاں پنجابی میں کہتے ہیں بنی ہوتی ہیں، سارا سامان اتار رہی ہیں، کبھی سر کچھ کبھی کچھ، سر وہ سارا سامان وہ نا وہ بیل گاڑی وہ بھر کے کھڑی ہوئی ہے۔ جب بیل گاڑی بھر کھڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہاں سے وہ انٹر ہوئے ہیں، سکھ برادری کے لوگ تھے، وہ انٹر ہوئے ہیں، تو وہ یہ سب بھاگے ہیں۔ انہوں نے آ کر نا یہ دادی کی یہاں پسلی کے اندر ایک نا وہ برچھی ماری، تو دادی وہیں پر جو ہے وہ گر گئی، پر یہ بھاگ گئے، چل جیسے بھاگ چل نکلے، تو دور سر دراز بڑی دور پہنچ کے نا سر، دور پہنچنے کے بعد جب یہ آگے آئے کوئی 15-20 کلومیٹر دور آ گئے، تو میرا دادا جو ہے وہ سارے تھے، اس نے کہا جی وہ میرا بچہ کدھر ہے؟ میرے باپ کا نام محمد صدیق کھرڑ، اللہ خلیق رحمت فرمائے، ابھی ان کا ریسنٹ انتقال ہوا، تو وہ اپنا میرا بیٹا صدیق کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کہ میرا بیٹا پھر پیچھے رہ گیا نا۔ اب بیٹا، اب وہ دادا جو ہے وہ کرالنگ کرتا ہوا فصلوں میں سے سر کرالنگ کرتا ہوا
कुछ 4 घंटे में लेटता लेटाता वापस घर में पहुंचा है तो खामोशी है, खामोशी है, कुछ भी नहीं, लाइटें बंद बुझी हुई हैं। तो वो अब दादी जो है वो पड़ी हुई है उसी तरह ज़ख्मों के साथ। तो अब वो जो दादी है उसके पास जाके उसको हाथ लगाया अंधेरे में, तो दादी ने कहा कि आ गए इमाम दीना? तो उन्होंने कहा हाँ मैं आ गया। अच्छा मेरा पुत्र कितने सदीक? उसने कहा सदीक, उन्होंने अपना वो गरारा शरारा उठाया और कहा ये तेरी अमानत है, ये ले जाओ ना। तो वो बच्चा जो मेरा बाप था उन्होंने उसके हवाले कर दिया सर। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं तेरे लैंड वास्ते आया। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा सकती। अब सर उन्होंने क्या किया, अपना रुमाल मफरल निकाला उस इमाम मस्जिद ने, वो जो वहाँ का ज़िम्मेदार था बड़ा, उसने निकाला और वो जो अंदर बाहर थे सारी अंतड़ियाँ सारी अंदर डाली, मफरल बांधा और कहा चल फिर अल्लाह ने वाले ना। वो छोड़ के तो फिर मेरे बाप को लेकर वो कैसे आए ना। इस मुल्क के लिए 6 लाख मुसलमान इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। 6 लाख इंसानों का कत्लेआम हुआ है, माएँ लुटी हैं, बहनें उजड़ी हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, बाप कटे हैं, फिर जाके आज़ादी हमें मिली है। क्या आज़ादी आसानी से मिली है हमें? नहीं नहीं सर, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, नाम, इज़्ज़त, वक़ार, बुलंद हौसला। अपनी मर्जी से रह रहे हैं, अपनी इबादतें करते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। कभी आपने गौर किया है ये जो सहाफ़त है ना सर, आप समझ लें कि ये फ्लैक्स लगाई ना राणा साहब ने मोहब्बत में से, ये फ्लैक्स है ना, ये एक आईना है। ये सहाफ़त जो ना एक आईना, एक माशरा है, ये माशरे का एक आईना है। पूरा माशरा एक आईने में, उस आईने के ऊपर गर्द गुबार भी है, उसके ऊपर कीचड़ भी है, धब्बे भी हैं, गंद भी है, गिलास पे भी कहीं कहीं से आईना साफ भी है। बस मेरा आपका काम है, प्लीज़ आओ इस आईने को साफ कर दें, आओ इस आईने को शफाफ बना दें। इस आईने का जो गंद है वो गंद भी साफ कर दें और इस आईने में जो अच्छी चीज़ें आए उसको और चमका दें। तो हम सब ने आईना साफ करना। बाकी राणा साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हम आपकी जनाब टीम है, हम सर आपके शाना बशाना खड़े हैं, हम कंधा से कंधा मिलाएंगे सर, हम आपके भाई बनेंगे। ये मेरी टीम सर आपकी टीम है, हम सर अपना दिन रात हम आपके साथ हैं। राणा साहब आप आवाज़ देंगे सर, बस आवाज़ देंगे, जो आने में टाइम लगता है ना सर, हम सब कुछ छोड़ राणा साहब आपकी आवाज़ पे पहुँचेंगे। और कभी राणा साहब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यकीन है कि हम आपको कॉल करेंगे, हमें यकीन है कि हमारा भाई भी हमारे पीछे ज़रूर आएगा। ये बात मैंने आज इसलिए की है, जैसे अली साहब कह रहे थे, मैंने बात इसलिए की है सर कि अगर सर अपना सपोर्ट काम तो सर हमने करना है ना, लेकिन फिर सर आओ जरा दबंग काम करें ना, खुल के काम करें, न डरें सर, न डरें। अल्लाह पत्थर में कीड़े को रिस्क, हमें भी रिस्क देगा ना सर। हम दिहाड़ीबाज साहबी बनने नहीं सर यहाँ पर आए ना, हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि मत, जिसने काम करना है दिहाड़ी के लिए मत आओ मेरे पास, ये दिहाड़ियाँ नहीं है, ये तो काम है, काम करना है, वर्क करना है। कहा था बाबा कौम ने कि काम काम काम। आपकी कितनी प्यारी बात है राणा साहब कि हमें दुख होता है, हमें कौसर साहब ने कहा हमें शर्मिंदगी होती है कि पाकिस्तान में 80 लाख खवातीन, बच्चियाँ, माएँ, बहनें अपने घरों से निकलती हैं, घर से उठाती हैं ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड उठाती हैं, आकर बैंक की लाइन में खड़ी होती हैं। कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी राशन कार्ड, कभी आसान कार्ड, कभी आटा कार्ड, कभी कुछ कार्ड। कौम को भिखारी बना दिया हमने, कौम को मांगने वाला बना दिया हमने, कौम की जो सोचे हैं उस पर पाबंदी लगा दी राणा साहब। और आप सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश में 80 लाख नहीं राणा साहब, 1 करोड़ 10 लाख खवातीन, बच्चियाँ, माएँ, बहनें अपने घरों से निकलती हैं, इदारों में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करती हैं, शाम को रिस्क के हलाल कमाकर वापस अपने घरों में लौटती हैं। आज यही वजह है कि आज की सुबह 7 बजे एक मैसेज मिलता है कि बांग्लादेश की जो करेंसी है, जो टका है, 1 टका हमारी, जब जैसे रुपया, जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, रियाल है, दिरहम है, ऐसे उसकी करेंसी टका है। आज वो जो 1 टका है हमारे 3.5 रुपये के बराबर हो चुका है। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है। आओ इस मुल्क के लिए काम करें, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये मुल्क, तो फिर वो ना सर वो बताने लगे, दादा बरसे बाद गया तो पता चला कि वो यार वो उसका एक वाक़या हुआ था, तो वहाँ के लोग बताने लगे कि आपके जाने के बाद अपना वो जो बरादरी थी, वो जो दुश्मन थे, उन्होंने उस घर को आग लगाती थी। तो हो सकता है वो आपकी जो बेबी है, दादी, जो कहीं वो जला गई हो। तो सर ये वाक़या तो मैंने सुना है, जब मेरे बाप ने मुझे बैठ के सुनाया होगा तो फिर उन पर क्या गुजरी होगी, उनके क्या जज्बात होंगे। अपना सर बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं की आप सबसे दरवाज़ दे रहा था। हम आपकी टीम है, हम आपका हिस्सा है, हम दिलो जान से हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी सारी टीम आपका शुक्रिया। और राणा साहब आपने हमें बहुत सी इज़्ज़तें दी हैं, अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त दे सर। और आखिरी शेर पर सर बात ख़त्म करता हूँ कि ज़िंदगी तू ही बता, ज़िंदगी तू ही बता, ज़िंदगी तू ही बता, कैसे तुझे प्यार करूँ,
मलिया जिंदगी तू ही बता, सोबिया जिंदगी तू ही बता, कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सुबह मेरी उम्र घटा देती है। दो और दो अपना लिखा हुआ शेर है कि 2 और 2 4 में तू लगा है, दौलत के हाथों खिलौना बना है। 2 और 2 4 में तू लगा है, दौलत के हाथों खिलौना बना है। अरे मट्टी के खिलौने जरा तुम ये सोचो, आकर चले गए इंसान कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मत कर इतना गुरूर अपने आप पर इंसान, मत कर इतना गुरूर अपने आप पर इंसान, न जाने अल्लाह ने कितने तेरे जैसे बना बना के मिटा दिए। फिर मेरा और आपका इकबाल कह गया कि हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह एक शेर कह रहा हूँ कि मोहम्मद से वफा तो उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जान चीज है क्या लोहे कलम तेरे। जज़ाकल्लाह। इसके बाद सारी बस ये एंड है, यही है।